آپ سب کا شکریہ. میں نے اپنی گفتگو محدود رکھی ہے کیونکہ میرا خیال تھا کہ سوال و جواب کرنے میں زیادہ وقت صرف کرنا چاہیے. آپ کے اگر کوئی سوالات یا تاثرات ہوں تو میں حاضر ہوں. جی رضی بھائی. ٹیکس دینے میں پس و پیش کرتا ہے، پیچھے رہتا ہے اور دونوں ایک دوسرے پر الزامات لگاتے ہیں. میرا سوال یہ ہے، میری گزارش یہ ہے کہ جو مقتدر طبقہ پاکستان کو سنبھالے ہوئے فرام دس ایلیٹ کلاس ٹو اسٹیبلشمنٹ کلاس، یہ کتنا ٹیکس دیتے ہیں؟ ان کی بھی پراپرٹیز ہیں، ان کی بھی انویسٹمنٹس ہیں، ان کی بھی فیکٹریز ہیں، ملٹی ملین لوگ ہیں. آن پیپر تو بہت تھوڑا سا ٹیکس دیتے ہیں، تو اسٹیٹ بینک کو کیا پہنچ رہا ہے؟ وائی شوڈ دی اونلی دی مطلب ہے کہ نجی سیکٹر شوڈ وائی شوڈ دیٹ بی بلیمڈ سوللی؟ دس مائی کوشچن. وہ بھی ٹیکس نہیں دے رہے نا، وہ بھی تو بالکل نہیں ٹیکس دے رہے. دیکھیں وہ بھی نجی شعبہ ہے نا. اگر آپ کا اشارہ قومی اسمبلی کے ممبران کی طرف ہے اور اگر ان کی ملیں ہیں یا فیکٹریاں ہیں تو وہ نجی شعبے میں آتے. دیکھیں جو وزراء اعظم اگر وہ بزنس مین ہیں تو وہ جو بزنس مین کے طور پہ ان کی شخصیت ہے وہ نجی شعبے کی ہے. تو نجی شعبے سے مراد میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف تاجر حضرات نہیں دے رہے. جو شخص بھی نجی شعبے میں ہے، جو حکومت سے باہر ہے، اگر اس کی کوئی فیکٹری یا مل ہے جو کہ حکومت اس کی ملکیت میں نہیں ہے، تو وہ سب اس میں چھوٹا تاجر بھی شامل ہے، بڑا بزنس مین بھی شامل ہے. جو زیادہ تر ٹیکس وصول کیا جا رہا ہے وہ بہت بڑی کمپنیز سے، ملٹی نیشنل سے، ان سے وصول کیا جا رہا ہے. اور جو سرکاری نجی شعبے کے ملازمین ہیں جن کی کے تنخواہ میں سے کٹ جاتا ہے. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو سرکاری ملازمین ہیں یا نجی شعبے میں ملازمت کرتے ہیں اگر ان کا نہیں کٹ رہا ہوتا تو وہ ضرور وہ بھی بچانے کی کوشش کرتے. لیکن اس میں سب شامل ہیں، اور کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ نجی شعبہ ٹیکس دینے میں پس و پیش نہیں کر رہا تو میرا خیال ہے کہ یہ غلط ہے. اور نجی شعبہ بہت زیادہ پس و پیش کرتا ہے اور یہ آج سے نہیں کر رہا. وہ آپ کی بات درست ہے کہ بھئی ہمارے ہاں ٹیکسوں کی چھوٹ بہت دی گئی ہے، افواج کو بہت زیادہ چھوٹ دی گئی ہے، وہ ایک الگ بات ہے. اگر کوئی اگر اس سے یہ طے کر لے کہ نہیں کیونکہ جب تک ان کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں لگے گا ہم اس وقت تک نہیں دیں گے، اور اس طرح سے رجسٹ کرے تو پھر ٹھیک ہے. لیکن اس طرح سے تو رجسٹ نہیں کیا جاتا. اور جو تجارت پہ یا دوسرے بزنس پہ جتنی آمدنی ہوتی ہے کریں اور اس پہ ٹیکس دیں، تو ہمارے ملک کی جو زیادہ تر خرابیاں، معاشی خرابیاں ہیں، وہ آہستہ آہستہ دور ہونی شروع ہو جائیں گی. سب سے بنیادی جو جڑ ہے خرابی کی وہ ہماری یہی ہے کہ حکومت ٹیکس وصول نہیں کر پاتی. اور وہ اس وجہ سے نہیں وصول کر پاتی کہ ظاہر ہے کہ اس میں بھی کرپشن ہے اور نجی شعبہ اس میں شامل ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے اس کا بھی ٹیکس. جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے وہ یہ ہے، لیکن کیونکہ آپ لوگ آن دا گراؤنڈ بزنس کر رہے ہیں تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے آپ سے زیادہ بہتر پتہ ہے. آپ کو میرا خیال ہے زیادہ بہتر پتہ ہوگا. جی ڈاکٹر فیضان صاحب. اس کی بات پوری اس میں کی گئی سینیریو کے اندر. میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان ایک ایگریکلچر کنٹری ہے، تو کیا پاکستان کے اندر ایگریکلچر ٹیکس جس طرح امپلیمنٹ ہونا چاہیے، جس طرح یو کے اندر ہے یا یو ایس اے کے اندر ہے یا جو ایگریکلچر کنٹریز ہوتی ہیں ان کے اندر ہے، کیا پاکستان میں ویسا ایگریکلچر ٹیکس لاگو کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا ہے؟ یہ ہے کہ جو انکم ٹیکس ہے وہ انکم پہ ہوتا ہے اور ہونا چاہیے. وہ انکم کسی بھی ذریعے سے آ رہی ہو، چاہے وہ ایگریکلچر انکم سے آ رہی ہو، چاہے وہ سروسز انکم سے آ رہی ہو، چاہے انڈسٹریل انکم سے آ رہی ہو، چاہے ٹریڈنگ انکم سے آ رہی ہو. تو ہمارے ملک میں بدقسمتی سے ایسا نہیں ہے، اور بالکل شروع سے ایگریکلچرل انکم جو ہے وہ ایگزیمپٹ ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. جی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو میرا جو مقصد ہے کہنے کا وہ یہی ہے کہ یہ سارے اقدامات حکومت کو کرنے کی ضرورت ہے نا، اس کو لینے کی ضرورت ہے. وہ پچھلے 75-76 سال سے تو لے نہیں سکی. فیوچر میں وہ لے گی یا نہیں لے گی اس کے بارے میں بھی کچھ حتمی طور پہ نہیں کہا جا سکتا. ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کوئی کرائسس آتا ہے تو وہ تھوڑے بہت اقدامات لیتی ہے، 3-4 سال
2 साल बेहतर गुजरते हैं और फिर वही होना शुरू हो जाता है। मैंने जो अपनी तकरीर कह लें उसको, कि उसमें ये अर्ज़ किया था कि जब तक टैक्स का मामला ठीक से हल नहीं होगा, देर पा इस्तेहकाम लाना तकरीबन नामुमकिन है हमारे मुल्क में। मेरा सवाल ये है कि अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाता है तो जो निचली सतह यानी हम आवाम जो हमें तो नुकसान हो गई, और इसका नुकसान किस किस शोबे देखिए, नुकसान तो पूरे मुल्क का होना है। ज़ाहिर है कि देखिए, जब भी नुकसान होता है तो जो सबसे कमज़ोर तबका होता है उसको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचता है, क्योंकि वो उसका मुतहम्मिल बहुत कम होता है। तो इसमें जो गरीब लोग हैं, इन्फ्लेशन अभी 27% के करीब है, और डिफ़ॉल्ट खुदा न खास्ता अगर हुआ तो इन्फ्लेशन और ज़्यादा बढ़ जाएगी, जैसे कि श्रीलंका में बढ़ी अगर डिफ़ॉल्ट हुआ तो। और इन्फ्लेशन की वजह से सब लोग, ज़ाहिर है कि जिनकी आमदनी बहुत ज़्यादा है वो उसको बहुत आसानी से बर्दाश्त कर लेते हैं। जिनकी आमदनी बहुत कम है, जो रोज़ाना मजदूरी करते हैं, उनकी तो ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है। इसमें तो किसी शुबे की बात नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि जब भी इस तरह के हालात होते हैं तो एक तरीका होता है कि सब्सिडीज़ दे के कीमतों को कम रखा जाता है। वो मेरे हिसाब से और IMF के माहिरीन के हिसाब से भी सही तरीका नहीं है। सही तरीका ये है कि कीमतों को आप मार्केट के मुताबिक, अगर वो ऊपर जानी है तो जाने दें, ताकि शॉर्टेज नहीं क्रिएट हो। लेकिन जो गरीब लोग हैं, जो वाकई मुस्तहिक हैं, उन तक आप कुछ रुकूमात उनकी इनकम सप्लीमेंट करने के लिए, ताकि वो चीज़ें ख़रीद सकें। तो ये जैसे इमरान खान के ज़माने में एहसास प्रोग्राम था, या उससे पहले, और अब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है। उसके तहत एक वजीफ़ा जो आइडेंटिफाइड लोग हैं गरीब, उनको दिया जाता है, तो उससे वाकई बहुत फ़ायदा होता है। अब ज़ाहिर है कि इस तरह के प्रोग्राम जब भी हुकूमत चलाती है तो उसमें सवालात भी उठते हैं कि उन्होंने सही लोगों को आइडेंटिफाई किया हुआ है या नहीं। लेकिन पिछली हुकूमत में जब एहसास प्रोग्राम चलाया गया तो उसकी इंटरनेशनल लेवल पे भी काफ़ी पजीराई हुई कि ये बहुत ही इफ़ेक्टिव प्रोग्राम था। सर मैं ये भी पूछना चाहूँगी, एक मिनट, सवाल पे सवाल नहीं, थोड़ा सा आपको दोबारा मौका दे दें। इसी सवाल के हवाले चलिए, से है करिए। कि जो जिस तरह सपोर्ट किया जाता है उससे बेहतर ये नहीं एक रोज़गार फराहम कर दिया जाए, फैक्ट्रीज लगा दी जाए रोज़ाना। देखें, वो बिल्कुल बेहतर है, लेकिन वो किस तरह लगा दी जाएं, क्योंकि फैक्ट्रीज तो लगती हैं, हुकूमत तो ये वाला काम नहीं करती, निजी शोबा ये काम करता है। हुकूमत ने जो नेशनलाइज किया था या अपनी इंस्टीट्यूशन बनाए हैं, वो तो सब लॉस पे चल रहे हैं। तो हुकूमत के लिए तो फैक्ट्रीज लगाना ठीक नहीं है। अच्छा, हुकूमत के लिए ये कहना कि हुकूमत रोज़गार पैदा करे, तो हुकूमत रोज़गार अपनी बेहतर पॉलिसियों की वजह से पैदा करती है कि वो ऐसी पॉलिसीज़ हों कि इन्फ्लेशन ज़्यादा ना बढ़े और ग्रोथ में इजाफा हो। वो अगर पॉलिसीज़ ठीक होंगी, और वो पॉलिसीज़ कब ठीक होंगी, जब टैक्स में इजाफा होगा, वो अपना डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर ज़्यादा करेगी, इस तरीके से होगा। तो लिहाजा हम जो है एक चुंगल में फंसे हुए हैं कि हम ये समझते हैं कि हुकूमत करप्ट है और हम उसको टैक्स पूरा नहीं देंगे, और हुकूमत समझती है कि ताजिर और बिजनेसमैन वो चोर हैं, वो अपना टैक्स पूरा नहीं अदा करते। तो हम 75-76 साल से इसी मसले में फंसे हुए हैं, और इस वजह से हमारे माशी तरक्की उस तरह से इस्तेहकाम के साथ नहीं हो पा रही। जी जावेद भाई, एक मिनट सभी। जावेद भाई, लेकिन आपके इन जवाबात से मुझे अंदाज़ा हुआ कि आप एक मखसूस एरिए पे ज़्यादा बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा उसी में से सवाल हो तो ज़्यादा मुनासिब है, जितना मैंने सुना। क्योंकि आपने पिछली हुकूमत का काफ़ी तस्करा किया है, माशियात, और आपने बिजनेसमैन को भी काफ़ी इल्ज़ाम धरा है। तो जो आखिरी प्रोग्राम था IMF का, जब इमरान खान साहब जाते जाते पेट्रोल की कीमतें और दूसरी कीमतें कम करके गए, इससे माशियात पे कोई फ़र्क पड़ सकता है? या ये कोई जो तवातिर है एक गवर्नमेंट का फंडिंग तंजीमों से जिनसे हम कर्ज लेते हैं, तो ये ताल्लुकात कैसे होते हैं?
جی میرا خیال ہے کیونکہ آپ نے شروع سے شاید نہیں سنا تو کچھ غلط فہمی آپ کے ذہن میں پیدا ہو گئی ہے. میں نے کوئی تعریف نہیں کری پچھلی حکومت کی تو عمران خان نے اگر وہ قیمتیں کم رکھیں تو صحیح نہیں کیا، کیونکہ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ سبسڈیز جان کے جو بھی کیا ہو تو وہ ٹھیک نہیں ہوا نا. سبسڈیز انہوں نے سبسڈیز دے دیں تو سبسڈیز ٹھیک نہیں ہوتی. قرضے دے کے سبسڈیز دینے کو، میں نے یہ کہا کہ آپ نے کسی ایسے شخص کو دیکھا ہے جو قرض لے کر صدقہ دیتا ہو تو وہ ظاہر ہے کہ ٹھیک نہیں تھا. جی جی زاہد بھائی آپ نے آپ نے دو چیزوں کی طرف اشارہ کیا تھا. ہاں ضلع بھائی بھی ہے. ہاں، ایک تو آپ نے جو پولیٹیکل اخراجات ہیں حکومت کے اسی طرف اخراج کیا تھا کہ وہ ہمارے یہاں زیادہ ہوتے ہیں. دوسرا آپ نے امپورٹ اور ایکسپورٹ کے حوالے سے بات کی تھی. تو اسی حوالے سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امپورٹ ایکسپورٹ ہم کرتے ہیں تو بیلنس آف پیمنٹ یا بیلنس آف ٹریڈ جو آپ کا بنتا ہے تو اس میں ہمیں خسارہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہم پنپ نہیں پا رہے زیادہ طور پہ. تو جب ہماری یہ جو امپورٹ ایکسپورٹ پالیسی بنائی جاتی ہے یا سروسز کی ایکسپورٹ امپورٹ کی پالیسی بنائی جاتی ہے تو ہم لوگ اس پہ کس وجہ سے ہم رک جاتے ہیں کہ کوئی کنٹرولڈ پالیسی نہ بنائیں ایسی جس میں تعیشات کی جو چیزیں ہیں یا وہ چیزیں جو ہمارے ملک میں خود بن رہی ہیں کہ ہم ان پہ ایک مکمل بین لگا دیں بجائے اس کے کہ ہم اس کے اوپر جو ایک ہے تو جی ڈی پی محصولات کے میں اضافہ ساتھ کرتے ہیں. دیکھا جاتا ہے کہ قرضہ کتنا ہے. آپ نے بالکل کہا بہت سارے ممالک ایسے بھی ہیں کہ جو 300% بھی ان کا جی ڈی پی کا قرض ہے، جبکہ ہمارا تو شاید 89% ہے. تو بظاہر اس سے غلط فہمی پیدا ہوتی ہے کہ ہمارا تو قرض کا بوجھ بہت کم ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ قرض واپس کرنے کی جو استعداد ہے وہ اس سے زیادہ میں 250 یا 300% جی ڈی پی ان کا قرضہ ہے، جو کہ بہت زیادہ ہے، لیکن وہ اس سے زیادہ قرض واپس کرنے کی استعداد رکھتے ہیں. اسی طرح سے وہ جو ایڈوانس کنٹریز ہیں وہ قرض واپس کرنے کی استعداد ان کی بہت زیادہ ہے. ہمارا جی ڈی پی قرضے کا بوجھ کم نسبتاً ہے، لیکن ہمارے قرض واپس کرنے کی استعداد بے حد کم ہے، تقریباً ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. تو یہ ہے اصل فرق. تو صرف ایک ڈیٹا پوائنٹ دیکھ کر ایک مخصوص اس سے کچھ اندازہ لگانا درست نہیں ہے میرا خیال ہے. جی شاہد بھائی. یہ طارق جمیل صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور مقرر بھی بہت اچھے ہیں. میرا سوال ایک یہ ہے کہ جو ماہرین معاشیات کو متعین کیا جاتا ہے حکومتی کاموں میں یا ملک کے معاشی معاملات کو ہینڈل کرنے کے لیے، کیا ان کو فریلی کام کرنے دیا جاتا ہے یا ان کے ہاتھ باندھ دیے جاتے ہیں، یا پھر جو سیاست میں جو لوگ حکومت میں شامل ہوتے ہیں وہ اپنی حکومت بچانے کے لیے معینہ معاشی اصولوں کو تباہ کر کے اپنی حکومت بچانے کے لیے ملک کی معیشت کو تباہ دیکھیے کرتے جو بات آپ نے بعد میں کہی بظاہر ایسا ہی لگتا ہے. جو دیکھیے نا اس حقیقت تو یا تو وہ خود جانتے ہیں یا اللہ جانتا ہے. اب میرے پاس تو اس کا جواب نہیں ہو سکتا کہ وزیر خزانہ یا پرائم منسٹر کس طرح سے کام کرتے ہیں. ہم جس طرح سے وہ کام کر چکے ہیں یا کر رہے ہیں ہم صرف اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں. تو جو آپ نے بات کہی ہے بظاہر وہ بالکل ٹھیک نظر آتی ہے، اور ہونا یہ چاہیے کہ ہمارے ملک میں سارے کام میرٹ پہ ہونے چاہیے، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ بدقسمتی سے ہمیشہ ایسا نہیں ہو پاتا. تھوڑا بہت میرٹ ہے لیکن یہ اس کو جس شدت کے ساتھ ہونا چاہیے وہ نہیں ہے. یوسف بھائی آپ نے بھی دیا تھا جو کافی ہیوج اماؤنٹ جی کیونکہ اسٹیٹسٹکس سے بھی آپ کا تعلق اس مالی خسارے میں ڈیٹ سروسنگ کا کتنا رول ہے؟ دیکھیں میں نے کچھ میرا خیال نمبر پیش کیے تھے کہ ہم یہ جو آمدنی کا جو تقریباً 69 یا 70% جو ہے وہ ڈیٹ سروسنگ میں گیا ہے پچھلے مالی سال میں حکومت کے ریونیوز کا. تو اگر آپ ڈیفیسٹ سے کمپیئر کرنا چاہتے ہیں تو وہ تو اور زیادہ ہوگا، کیونکہ ڈیفیسٹ کا سائز جو ہے ریونیو کے سائز سے کم ہوتا ہے. جی اکبر بھائی. امید ترقی کے
इमरान से उसके ज़माने का एक ड्रामा देख रहा था, उसमें जोर से वो जरा कोई- खड़े होके करें, आवाज मेरे ख्याल में पीछे तक नहीं जा रही। वो कोई टर्की जो उस ज़माने में कोई कर्जा वापस नहीं कर पाया, तो जो लेंडर थे उनका दावा था कि फ़लाँ वाली पोर्ट हमारे, हम उसको टेक ओवर कर लेते हैं, इस किस्म की कोई इशू था। और पाकिस्तान में भी इस वक्त इस बातें हो रही हैं कि फ़लाँ वाला एयरपोर्ट जो है वो आउटसोर्स कर दिया जाएगा। क्या इनमें कोई मुमासलत है और इसका क्या हकीकत देखिए, है? इनका मुताला मेरा बहुत महदूद है। जो आपने सुल्तान अब्दुल हमीद का हवाला दिया, मुझे उसके बारे में इल्म नहीं है। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं, श्रीलंका में एक उन्होंने पोर्ट वाली तकरीबन कर दी थी, तो ऐसा हो सकता है। देखिए, ये जो अलास्का है, जो अमेरिका की एक रियासत है, ये एक ज़माने में ज़ार ऑफ रशिया के अंडर थी, तो अमेरिका ने उससे ख़रीद लिया था। ये तो ऐसा ज़मीन जिस तरह बिक जाती है, तो बहुत बड़ा हिस्सा बिक सकता है, तो इसमें लेकिन इस तरह की मौजूदा हालात में बहुत कम मेरा ख्याल एग्ज़ाम्पल्स मिलेंगी। यहाँ पे मैंने ऐसी कोई चीज़ नहीं सुनी। जो आउटसोर्सिंग की बात कर रहे हैं, आउटसोर्स जो की जाती है, अगर किसी एयरपोर्ट का निज़ाम चलाने के लिए उन सर्विसेज को आउटसोर्स किया जा रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो एयरपोर्ट की मलकियत मुंतकिल की जा रही है। बल्कि अगर किसी में इतनी अहलियत नहीं है कि एयरपोर्ट को ठीक से चला सके, और उसने फ़ैसला किया है कि दूसरे लोग बेहतर तरीके से चला सकते हैं और मेरा ख़र्चा ख़ुद चला उसको संभालने का ज़्यादा है, और मैं किसी और दूसरे को थोड़े से कम पैसे दे के वो बेहतर तरीके से संभाल लेगा, तो आउटसोर्सिंग का ये उसूल है। अगर ऐसा किया जा रहा है तो मेरे ख्याल में तो मुझे बज़ाहिर कोई इसमें कबाहत नहीं नज़र आ रही। जी आफ्ताब फारूकी साहब। जो अब वैसे तो बात हो रही है, यानी उसके मैं आम आदमी की बात करना चाहता हूँ कि हमें जाहिर है आम आदमी का जो वो है कि वो अपने आप को किस तरीके से इससे बचाए और हुकूमत का मुआविन साबित हो। देखिए, आम आदमी, जब भी हम ये बात करते हैं आम आदमी, तो सबसे पहले हमें ये जहन में रखना चाहिए कि आम आदमी से मुराद क्या है। हम सब जो बैठे हुए हैं आम आदमी नहीं है, इसका ये तो मतलब मैं अगर ये समझूं तो क्या मैं गलत हूँगा? हम आम आदमी नहीं है, हम ख्वास में से हैं। मैं यही समझूंगा। आम आदमी से मुराद ये है कि जो बहुत गरीब हो, जिसके पास इस तरह की इमारत आने में सकत भी ना हो, ना हिम्मत हो कि बाहर वो चौकीदार से कह के अंदर आने की कोशिश करे। अगर देखें, उन लोगों के लिए तो उनकी मदद करना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो हुकूमती सतह पे हो, चाहे वो निजी सतह पे हो। मेरा ख्याल है कि बहुत सारे लोग उनकी मदद भी करते हैं। हुकूमत की तरफ से, मैंने पहले कहा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, उनकी तरफ से भी उनको महीना महीना मिलता है। लेकिन होता ये है कि जब बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हो रहे होते हैं, तो उससे जो बेहतर लोग होते हैं वो भी वैसे उनके होने का ख़तरा हो जाता है, और गुर्बत की लकीर से नीचे आने का उनका ख़तरा होता है। तो उसका सिद्देबाब कैसा करना चाहिए, उसका भी जवाब वही है कि फिर उनकी ज़्यादा मदद करनी चाहिए। दूसरा जो तरीक़ा है कि हुकूमत सब्सिडीज़ देकर कीमतें कम करे। मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि ऐसा करना ठीक मेरे हिसाब से नहीं है। बेहतर ये है कि जितना वो ख़र्चा सब्सिडीज़ देने पे सर्फ कर रही है, उससे तकरीबन आधा वो सर्फ करे और उन पे तकसीम कर दे, तो मुल्क के हालात काफ़ी बेहतर हो जाएंगे। सब्सिडीज़ देने से होता ये है कि जो भी चीज़ आप सस्ता फिर फ़रोख्त कर रहे हैं, आटा कर रहे हैं, घी कर रहे हैं, तो वो हम जैसे ख्वास जाके वो भी ख़रीदते हैं वो सस्ता, और हम फ़ायदा उठाते हैं, और इसका नुकसान उन गरीब को होता है, आम आदमी को। वसीम फारूकी। इस्तेहकाम आता है, इसमें 3 इदारों का तो किरदार अभी यहाँ पे मौजूद है। सियासतदान है, अदालती निज़ाम है, अफवाज पाकिस्तान है। लेकिन एक चीज़ और भी है, एनर्जी क्राइसिस। पाकिस्तान के अंदर एनर्जी क्राइसिस इतना ज़्यादा है जिसकी वजह से माशी इस्तेहकाम नहीं आ रहा, चीज़ें महंगी से महंगी होती चली जा रही हैं। एनर्जी क्राइसिस से मुराद मेरा ये है कि जब सबसे पहले
سب سے پہلے یہاں پہ ہمیں ڈیمس بنانے چاہیے تھے. کالا باغ ڈیم جب بننا تھا اس وقت کالا باغ ڈیم کا سیاستدانوں نے بڑی سختی کے ساتھ اس کو وہ کیا, اعتراض کیا کہ یہ نہیں بننا چاہیے. میں نے خود ذاتی طور پہ کالا باغ ڈیم کا وزٹ کیا تھا اور 50% ڈیم جو تھا وہ نیچرل تھا, 50% ڈیم مطلب اخراجات آتے تھے. اگر ڈیمس بن جاتے ہیں پاکستان کے اندر تو یقین جانے انرجی کرائسس آپ کا بہت کم ہو جاتا اور معاشی استحکام بھی بہتر آتا. میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ ڈیمس کے حوالے سے اس پہ کیوں زور نہیں دیا جاتا ہے کہ حکومت وقت یا حکومت سیاستدان سے زور کیوں نہیں دے کہ زیادہ سے زیادہ ڈیمس بنائے جائیں. پاکستان کے اندر پانی بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ پانی جو سمندر میں چلا جاتا ہے. بات آپ نے کی, میں اس سے بالکل متفق ہوں, لیکن حکومت کیوں نہیں کر رہی ہے اس کا جواب تو میرے پاس نہیں ہے, کیونکہ یہ سیاسی تنازع ہے اور اس میں سندھ اور اس کے خلاف ہے اور خیبر پختونخوا بھی غالباً اس کے خلاف ہے. تو اس کو شروع سے ہی ایک سیاسی تنازع کی شکل جان بوجھ کے دی گئی ہے یا واقعی, کیونکہ آپ نے شاید یہ پڑھا ہوگا کہ سندھ نے الزام لگایا تھا کہ پانی چوری کر لیا ہے پنجاب نے, وہاں سے سپلائی نہیں کیا. پھر اس کے کئی مہینے بعد اگر آپ میں سے کسی نے خبر پڑھی ہو کہ وہ دوبارہ کیلکولیشن کی گئی تو معلوم یہ ہوا کہ پانی جب وہاں سے بہتا ہوا آتا ہے تو کچھ ہوا میں بھی چلا جاتا ہے گرمی سے, تو وہ والا پانی تھا, وہ چوری نہیں ہوا تھا. تو یہ میرا خیال ہے یہ ساری غلط فہمیاں ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی چوری کر لے گا یا دوسرا پانی چوری کر لے گا. ان سب کی وجہ سے اس کو سیاسی تنازع کی شکل دے کے یہ کام نہیں کروایا گیا, جو کہ اگر ہو جاتا تو واقعی اس سے ملک کو بہت فائدہ ہوتا. جاوید بھائی. السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ ٹیکس وصولی کا جو نظام ہے ہمارے یہاں کتنا کمزور ہے, یہاں سب لوگ بیٹھے ہوئے سب لوگ سمجھتے ہیں اور لوگ ٹیکس دینا چاہتے ہیں. آپ نے کہا کہ عوام ٹیکس دینا چاہتی ہے, حکومت جو ہے اپنے وصول کرنا چاہتی ہے, لوگ تو ٹیکس دینا چاہتے ہیں. جیسے مارکیٹ کی بات بتاؤں کہ جو ٹیکس وکیل جو ہے وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ کتنا ٹیکس دینا چاہتے ہیں. ہم کہیں کہ 5,000 10,000 اس کو دینے ہیں, وہ 5,000 کا ٹیکس بنا. جب تک اس نظام کو ہم کنٹرول نہیں کریں گے پھر آپ کتنے بھی ٹیکس جمع کر لیں, کتنی بھی چیزیں اس پر لے آئیں, وہ کبھی بھی نہیں ہوگی. اس کے لیے کیا اقدامات ہیں, کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے میں ٹیکس کا تو ماہر نہیں ہوں, مجھے تو نہیں معلوم, لیکن میں آپ کو صرف ایک ایگزامپل دے سکتا ہوں کہ ابھی پچھلے سال حکومت نے ایک نیا ٹیکس لگایا ہے. ابھی اس کورٹس میں وہ متنازع بنا ہوا ہے جو کہ زمینوں کے اوپر ہے, جو کہ ڈیمڈ انکم. اب کیا ہم لوگ وہ ٹیکس دینا چاہتے ہیں؟ میں اپنی بات آپ کو بتا دیتا ہوں. جی میں بھی نہیں چاہتا, کیونکہ میرے پاس بھی ریٹائرمنٹ کے بعد میں نے کچھ پلاٹس خریدے تھے اور میں بھی نہیں چاہتا کہ حکومت اس پہ میں اس کو ٹیکس دوں. ٹھیک ہے, تو خواہش تو میری بھی یہی ہے, لیکن اس کی اکنامک ایک ریزننگ ہے کہ جو ہم زمینوں پہ انویسٹ کر دیتے ہیں وہ پیسہ تقریباً بیکار جاتا ہے اور اس سے کوئی پیداوار نہیں ہوتی. یہ ہمارے ملک کی بہت بڑی قسمتی ہے کہ ہمارا جو سرمایہ ہے, ہماری جو سیونگ ہے وہ زیادہ تر پلاٹ خریدنے میں صرف ہو جاتی ہیں. یہ ٹیکس لگانے کی کوشش کی ہے تو سب اس کے خلاف ہو گئے ہیں, میں بھی اس میں شامل ہوں. بہت سارے لوگوں نے تو بڑے بڑے وکیلوں سے پٹیشن کروائی ہے, پھر وہ سندھ ہائی کورٹ سے اس کا فیصلہ کچھ آیا اور لاہور ہائی کورٹ سے کچھ فیصلہ آیا, تو سپریم کورٹ غالباً سپریم کورٹ گیا ہوا ہے کہ کیونکہ یہ انکم ٹیکس نہیں ہے اور یہ لہذا اس کی ریزننگ تو میرا خیال ہے وہ لائر ہی بتائیں گے. تو میں صرف آپ کو یہ ایگزامپل دے رہا ہوں, اور میرا خیال ہے کہ اگر یہ ٹیکس لگ جائے تو مجھ جیسے لوگوں کے اوپر کیا ہوگا کہ ہمیں جو ہمارے پاس 3-4 پلاٹ ہیں اس میں سے ایک پلاٹ بیچ کے ہمیں ٹیکس ادا کرنا پڑے گا, اگلے سال پھر دوسرا پلاٹ بیچ کے ادا کرنا پڑے گا. تو اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ بھئی آپ کے پاس سرمایہ ہے وہ پلاٹوں پہ نہ لگائیں, بلکہ وہ سرمایہ کہیں اور جائے, اس کے پاس جائے جو کوئی بزنس کر سکے یا کوئی مل لگا سکے. ریحان شہزاد صاحب. آپ کا کیا خیال ہے, چونکہ آپ ایک بہت ذمہ دار پوسٹ پہ رہے ہیں, انٹرنیشنل ایجنڈا کی
तो आपका क्या ख्याल है कि ये डिफॉल्ट की तरफ लेके जाना पाकिस्तान को क्या कोई इंटरनेशनल एजेंडा है? इससे मेरी मुराद ये है कि जैसे हमारे मुल्क के 2 टुकड़े हो गए, उसके बारे में ये कहा जाता है कि जी वो इंटरनेशनल एजेंडा था। अच्छा, हमारी मौजूदा हुकूमत तो ये साबका हुकूमतें हैं या हमारे इदारे हैं, वो सबके सब ऐसा लगता है कि जानते पूछते या बहालत मजबूरी जो है वो सब उसको उनको फॉलो करना पड़ता है। तो एक तो ये चीज़ है। एक मेरा सवाल ये कि क्या आपके ख्याल में ये कोई इंटरनेशनल एजेंडा है? 2 बातें आपने बड़ी हैरत अंगेज कही हैं। एक बात तो आपने ये कही कि जी टैक्स बढ़ाए जाएं। टैक्स कितने बढ़ाए जाएं? सुबह उठने से लेके रात के सोने तक कौन सी ऐसी चीज़ है जिस पे हम टैक्स नहीं लेते? मेरा ताल्लुक जो है एक छोटे से होटल से है, 17-18 किस्म के हम टैक्स देते हैं, और उसमें जहाँ 5,000 रुपये टैक्स देते हैं वहाँ 50,000 रुपये 40,000 रुपये रिश्वत देनी पड़ती है। दूसरा, आपने बड़ी हैरत अंगेज बात ये कही कि डिवेल्यूएशन जो है वो उससे इस्तेहकाम आता है। तो डॉलर को अगर हम 1,000 रुपये का करते हैं तो आपका क्या ख्याल है कि उससे इस्तेहकाम आएगा? डॉलर को 1,000 रुपए करने से इस्तेहकाम नहीं आएगा। देखें, डॉलर किसी को नहीं पता कि मार्केट वैल्यू इस वक्त क्या है, ना आपको पता है ना मुझे पता है। वो तो जब आप मार्केट में छोड़ेंगे तो एक वैल्यू उसकी इमर्ज होगी, और उससे आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोर्ट्स को, जो एक्सपोर्टर हैं उनके प्रॉफिट में थोड़ा बहुत इजाफा होगा, और जो इंपोर्टर हैं उनके प्रॉफिट में थोड़ी बहुत कमी होगी। लिहाजा क्योंकि डॉलर बहुत महंगा होगा, लिहाजा हमारे मुल्क में जो इंपोर्ट कल्चर है उसको करेक्ट करने में मदद मिलेगी। एकदम से तो कोई चीज़, अगर आपसे इसी तरह का सवाल कर दूं कि डॉलर अगर एक रुपए का $1 हो जाए तो हमारे मुल्क में क्या हालात बहुत अच्छे हो जाएंगे? मैं कहूँगा कि बेहद ख़राब हो जाएंगे। अगर ऐसा हो जाए तो हम सब सारी चीज़ें इंपोर्टेड लेंगे, कोई कुछ करने की कोशिश नहीं करेगा। दूसरा, आपने जो शुरू में कहा कि कोई इंटरनेशनल एजेंडा है, किस मुल्क को ये पड़ी है कि हमारा मुल्क खुद इन्हिसारी की तरफ जाए, जब हमें खुद ही नहीं इसकी इसकी कदर का एहसास? तो ये तो डिफ़ॉल्ट तो इस्तेहकाम की तरफ बहुत तेज़ी से लेके जाती है। तो कौन सा मुल्क हमें चाहेगा कि हम अपने पाँव पे खड़े होने लगें? तो ये कैसे इंटरनेशनल एजेंडा बन गया? मेरे तो ये सवाल किस तरह से जहन में आया, मुझे इस पे ही बहुत हैरत है। जी जावेद भाई, आपने कहा और गवर्नमेंट भी जो भी आती है, सियासी हो या फौजी हो, इल्ज़ाम भी लगता है पब्लिक पे कि पब्लिक टैक्स देती है। हमारे मुल्क में जमादार से लेकर सरकारी मुलाजिम तक टैक्स देता है। आप मोबाइल खरीदेंगे उस पर टैक्स है, आप खाने पीने का अशिया खरीदेंगे उस पर टैक्स है, सेल्स टैक्स है, ठीक है। इवन आपके बिल्स में 6 टैक्स लगे हुए, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी बिल में 6 से ज़्यादा टैक्सेस है। दूसरी बात यह है कि डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनमें ज़रा मुझे फ़र्क बताइएगा, और कौन से जायज़ और कौन सा नाजायज़? देखें, इनकम टैक्स जो होता है वो बराह रास्त हमारी जो इनकम है उस पर लगता है, वो डायरेक्ट टैक्स होता है। और जो हम कोई चीज़ ख़रीदने जाते हैं उस पर लगता है, जैसे सेल्स टैक्स है, वो इनडायरेक्ट कहलाता है। दूसरा ये है कि बज़ाहिर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने यहाँ पे टैक्स की बात करके दुखती रग पे हाथ रख दिया है। जी राशिद भाई, दूसरी बात यह है कि हमारा मुल्क जिन मुश्किल हालात में आज है और अदम माशी सूरत हाल से हम दो चार हैं, इसके असल मुहर्रकात और असल किरदारों को आज तक क्यों गिरफ्त में नहीं लिया गया? आज तक पूरी जो हम तबाही के दाने पे पहुँचे हैं, इसमें जिन लोगों का इसमें जुल्म किया है, जिन लोगों ने मुल्क और कौम के साथ, वो आखिर कब काबिल गिरफ्त होंगे? और हमारे मुल्क को कब एक ऐसा सिस्टम मिलेगा शफाफ टैक्स का, हर शख्स इज्जत के साथ टैक्स दे और उसके बदले उनको उसकी सहूलियात और उसके फवाइद भी मिले। यूँ कि मैं समझता हूँ टैक्स का जो हम रोते हैं कि टैक्स नहीं दिया जाता, हालांकि टैक्स दिया जाता है, सही उसका इस्तेमाल नहीं होता, और सही इस्तेमाल न होने की वजह से लोगों में दायरे तकालीफ हैं जो ख़त्म नहीं होती, इसकी वजह से वो लोग परेशान रहते हैं। हमारा कराची का हाल देख लीजिए, 70% टैक्स दे के हमारा क्या हाल हुआ। अल्लाह पाक हमें शऊर दे, और मैं तजवीज़ दूंगा इस मौके पर, आप माहिर माशात हैं कि खुदा इस मुल्क के लिए माहिरीन आगे आएँ
और इस इस्तेहकाम मैशत के लिए अपना किरदार अदा करें ताकि पाकिस्तान की मैशत मजबूत हो और हम खराफात से निकल सकें। ये आसिफ भाई, ये मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हम टैक्स देते हैं, टैक्स ना देना जो है वो बिगेस्ट क्राइम है। और ये अमेरिका, कनाडा और ये दूसरे जो ममालिक हैं, यूके हैं, उनके यहाँ भी टैक्स देना सबसे बड़ा जुर्म समझा जाता है। तो वो, लेकिन उसके साथ साथ ये भी है कि मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि मैं टैक्स देता हूँ, तो मेरे पास एक उसका जवाब आता है कि आपने जो टैक्स दिया था उनको हमने इन जगहों पे खर्च किया। तो ये एक एतमाद का रिश्ता जो कायम होता है, जो हुकूमत और आवाम के दरमियान में नहीं है। अगर कहीं से कोई आमदनी के ज़राए बढ़ते हैं या कम भी होते हैं तो हुकूमत अपने अखराजात को बढ़ाती रहती है। मसलन अभी आप देख लें कि 74 के करीब जो है वो कैबिनेट है, जिसमें मिनिस्टर्स और एडवाइजर्स एंड स्पेशल असिस्टेंट्स। सर भाई माइक मुझे दे दें। ये इसका क्या मतलब होगा, कैसे पता चलेगा कि भाई जो टैक्स देने वाला है वो उसको एक यकीन हो कि उसका टैक्स जो है, बल्कि हुकूमतें तो बताती हैं कि आपका पैसा कहाँ है। इतनी सी बात है कि अगर हमें कुछ काम होते नज़र आने लगे, ठीक है, अगर तो मेरा ख्याल है कि वो फिर हमें ये एहसास ज़रूर होना चाहिए कि ये हमारे टैक्स थे जिनकी वजह से ये काम हो रहे हैं। मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि इस वक्त जैसे अभी मैं जब यहाँ पे अपनी गाड़ी ड्राइव करके आ रहा था, तो ये जो शहीद मिलत एक्सप्रेस वे है, ये आप सब अगर आप लोगों का गुज़र होता हो तो वो दोनों तरफ से बहुत ख़राब थी। एक तरफ से इन्होंने काफ़ी पहले ठीक कर दी बारिशों के बाद, और एक आजकल ठीक हो रही है। तो ये जो ठीक हो रही है, ये किस तरह से, किसके पैसों से ठीक हो रही है? ये बेशक इसको ठीक 1 साल पहले होना चाहिए था और बहुत तेज़ रफ्तारी से होना चाहिए था, लेकिन ये आखिरकार हो तो रही है ना ठीक। तो इसे कौन कर रहा है? तो ये से हुकूमत ही कर रही है ना, ये या कोई निजी शोबा कर रहा है ठीक। तो मैं कहता हूँ कि ये खर्च जब भी हम लोग टैक्स देते हैं, ये उसमें से एक पोर्शन ज़रूर सर्फ होता है। अगर आप ये समझते हैं कि जो हम कोई चीज़ हमारे ऊपर सर्फ नहीं हो रही, अगर ऐसा हो रहा होता तो मेरा ख्याल है कि हम तो शायद पत्थर के ज़माने में चले गए होते 47 के बाद। तो ये बिल्कुल गलत है जो आप लोगों की सोच है, माफ़ कीजिएगा, कि जो हम टैक्स देते हैं वो हुकूमत खर्च नहीं करती। हुकूमत खर्च करती है, लेकिन वो बहुत तरद्दुद के साथ करती है, बहुत देर करती है। ख़ास तौर से हमारी जो सिंध की हुकूमत है वो तो बेहद नाकारा, आप समझ लें, इसमें तो कोई शुबे की बात नहीं है। लेकिन नाकारा तरीन हुकूमत भी उसको होश आ जाता है जब उसके इंतखाबात होने वाले हों या करीब हों, और वो थोड़ा बहुत काम ज़रूर शुरू करती है। तो टैक्स के पैसे ज़रूर खर्च हो जाते हैं। और ये मैंने कहा ना कि क्योंकि ना हम लोग एतमाद करते हैं हुकूमत के ऊपर, ना हुकूमत हमारे ऊपर एतमाद करती है, तो जब तक ये बुनियादी चीज़ इसका कोई हल नहीं निकलेगा, हमारे मुल्क में माशी इस्तेहकाम नहीं आ सकेगा, और कोई माहिर माशियात इसका हल नहीं बता सकता कि ये किस तरह होगा। ये सियासतदान बता सकते हैं। जी, इसके बाद हाजी शरीफ साहब। आपने कहा था कि कौम जो है वो टैक्स नहीं देती। कौम तो जनरल टैक्स देती है, हर बिल पर टैक्स लग के आता है, हर चीज पर टैक्स लग के आता है। सवाल मेरा ये है कि आप ये कहते हैं कि जी जिसने 3 प्लाट रख दिए और टैक्स लगा रही है गवर्नमेंट, आपने 3 प्लाट क्यों रखे हुए? लोगों ने 20-20 प्लाट रखे हुए। आदमी के पास तो मकान नहीं है। जब प्लाट सस्ता बिकता है या फ्लैट सस्ता होता है तो लोग 10-10, 20-20 खरीद लेते हैं और बाद में रीसेल करते हैं उसको। तो गरीब आदमी को कहाँ से मिलेगा? एक छोटी सी बात मैं करता हूँ। तेसर टाउन जो है ना, आज से 25 साल पहले शुरू हुई थी इसकी। तो हमने हुकूमत के पास जो है ना राब्ता किया और ये पैगाम दिए कि तेसर टाउन की स्कीम जो है वो सिर्फ उनके लिए होनी चाहिए जो उनके पास प्लाट नहीं है, और वो प्लाट 99 साल तक सेल नहीं किया जा सके।
ये हमने डिमांड की थी, लेकिन जाहिर है कि कोई सुनता नहीं है, ताकि गरीब आदमी और ज़रूरतमंद आदमी ही उसको ले। बहरहाल ये सॉरी मैंने आपका वो दे दिया। अच्छा, इसके बाद अमजद महमूद साहब। सारी बात हो रही है और उसमें फ़ौरन हमें मिसाल मिल जाती है श्रीलंका की, और वहाँ से एक बहुत बड़ी खबर आई है कि अपनी बहाली के लिए वो जो कदम उठा रहे हैं उसमें एक बहुत बड़ी चीज़ उन्होंने फ़ौज की तादाद में कटौती की है। अब हमारे यहाँ जो दिफाई बजट है उस पर अभी तक कोई बात नहीं हुई है और वो बड़ा ख़तरनाक समझा जाता है, आपकी मुस्टार्टिंग बता रही है। तो बात यह है कि फ़ौज के बहुत सारे अखराजात जो हैं वो गैर दिफाई हैं। मसलन हर शहर की प्राइम लोकेशन पे अभी प्लाटों की बात हुई तो वो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं। इस तरह के बहुत सारे खर्चे हम देखते हैं जो हमारे फौजी दोस्तों से पता चलता रहता है कि वहाँ बहुत सारे अखराजात वो गैर फौजी चीज़ों में जो डिफेंस पे कोई असरअंदाज नहीं होते, तो उनकी भी कटौती की तजवीज़ होनी चाहिए, ये थोड़ा बता दें। जी हम मुकालमे की तरफ से भेजेंगे इंशाल्लाह। ये तो अता भाई को दीजिए। डेफिसिट के लिए कौन से ऐसे कंक्रीट मेजर लेने चाहिए जिससे ये करंट अकाउंट डेफिसिट कम से कम? देखिए, सबसे एक कदम बहुत अहम है इसमें, वो ये है कि जो एक्सचेंज रेट है उसको मार्केट के मुताबिक रखना चाहिए, उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो हमारे यहाँ मैंने आपको जैसे बताया था कि 1949 से ये मामला चल रहा है कि इसको बजाय डीवैल्यू करने के रीवैल्यू किया जाता है, यानी इसकी कीमत रुपया को मजबूत करने की कोशिश की जाती है। यहाँ पे हमें इसको इस तरह से देखना चाहिए कि हमें मुल्क को मजबूत करने की ज़रूरत है, रुपये को मजबूत करने की ज़रूरत नहीं है। रुपया हमें जो है मार्केट के ऊपर रखना चाहिए। डॉलर जो है वो महंगा होना चाहिए, उससे फ़ायदा क्या होगा कि हम इम्पोर्टेड अशिया महंगी होंगी, उससे फ़ायदा ये होगा कि हमारे मुल्क की जो अपनी अशिया हैं वो निस्बतन सस्ती होंगी और लोग उनको ख़रीदेंगे। जब वो लोग उनको ख़रीदेंगे तो वो उनकी पैदावार में भी इजाफ़ा होगा। तो हमारे यहाँ ये नहीं किया जाता, लिहाजा हम ज़्यादातर इम्पोर्ट्स करते हैं। पिछले 76 साल से हम इम्पोर्टेड चीज़ों पे गुजारा बहुत ज़्यादा करते हैं, जो कि निस्बतन कम होना चाहिए। तो सिर्फ एक्सचेंज रेट अगर मार्केट पे छोड़ दिया जाए, जो कि कुछ अरसे छोड़ा था पिछले गवर्नर के दरमियान, जब इस हुकूमत में भी मिफ्ता इस्माइल जब तक वज़ीर ख़जाना रहे, काफ़ी हद तक मेरा ख़्याल है कि वो एक्सचेंज रेट मार्केट डिटरमिन था। जब से इसहाक डार साहब आए, मेरा ख़्याल है कि ऐसा नहीं है। मजीद रहमानी साहब। तो से जो सब्सिडरी ज़र तलाफ़ी और महसूलात, इस पर आपके ख़यालात आम डगर से बिल्कुल हटके हैं, खासे सवालात पैदा होते हैं कि ज़र तलाफ़ी और, लेकिन मेरा सवाल स्टेट बैंक के हवाले से, क्या स्टेट बैंक का काम फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी जो दो बड़े फ़राइज़ हैं, आपने ये कहकर कि मार्केट के अवामिल को करेंसी का रेट तय कर लेने दिया जाए, उससे आज़ादी हो, तो क्या स्टेट बैंक का जो करदार मॉनेटरी पॉलिसी जारी करने में उससे फारिग हो गया? एक बात। दूसरी बात, क्या मार्केट फोर्सेस के हवाले कर दिया जाए पाकिस्तानी मुल्क की करेंसी को? ट्रांसपोर्ट माफिया, पेट्रोल माफिया, शुगर माफिया, ये फार्मा इंडस्ट्री, क्या इनके हवाले मार्केट फोर्सेस जो है वो करेंसी का रेट तय करें? ये एक मेरा ये सब। दूसरा है, क्या ज़िमनी सवाल, स्टेट बैंक का गवर्नर क्या आईनी मनसब है और कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, जैसे चीफ जस्टिस की या इलेक्शन कमिश्नर की होती है, उसके खिलाफ इंतजामिया या हुकूमत वक्त कार्रवाई करते हुए ज़रा सोचते हैं, डरते हैं, झिझकते हैं? तो अगर ऐसा है तो फिर क्यों स्टेट बैंक के गवर्नर आज़ाद नहीं होते अपनी पॉलिसी बनाने? बहुत शुक्रिया। स्टेट बैंक के गवर्नर आज़ाद क्यों नहीं होते? देखें, इसका जवाब तो सिर्फ गवर्नर ही दे सकता है ना। मैं तो गवर्नर की नुमाइंदगी हरगिज़ नहीं कर सकता। वह तो वो आज़ादी से काम करते हैं या नहीं करते, वो इसका जवाब सिर्फ खुद दे सकते हैं। कोई नहीं, ऑब्जर्वर की हैसियत से तो आप भी ऑब्जर्वर हैं, मैं भी ऑब्जर्वर हूँ, ठीक है ना। दूसरे, आप कह रहे हैं कि मार्केट फोर्सेस के हवाले करके फिर क्या बरी उस ज़िम्मा हो जाएगा? नहीं, आपको मार्केट फोर्सेस के हवाले करके एक्सचेंज रेट से मॉनेटरी पॉलिसी बेहतर तौर पे वदा होगी, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी सिर्फ ये तो नहीं होती ना कि एक्सचेंज रेट कहाँ रखा जाए। मॉनेटरी पॉलिसी तो आप जो शरह सूद है, इंटरेस्ट रेट्स कहाँ रखा जाएगा, मनी सप्लाई किस तरह बढ़ाई जाएगी, कम की जाएगी,
कर्जे किस तरह से उनकी बढ़ने की रफ्तार या ज़्यादा की जाएगी, वो है मॉनेटरी पॉलिसी। और एक्सचेंज रेट अगर मार्केट को दे दिया जाए तो वो वाले सारे काम बहुत बेहतर तरीके से होते हैं। सारी दुनिया में यही उसूल राइज है कि आप मॉनेटरी पॉलिसी जब भी बेहतर तौर पे वदा करते हैं तो उसके लिए लाजमी होता है कि एक्सचेंज रेट मार्केट के हवाले हो। तो अभी जाहिद भाई सवाल करें है, तो दैट इज़ वाई हम पनप नहीं पाते, क्योंकि हमें अपने कर्ज की किस्तें और उसके सूद जो होता है उसको देने में इतना पैसा देना पड़ता है कि फिर हमारे यहाँ कुछ बचता नहीं है। लेकिन मैं अभी एक खबर देख रहा था कि कल के अखबार में, कल नहीं परसों के अखबार में, कि जापान जो है उसकी जीडीपी का 266% जो है कर्ज है उसके पास, और अमेरिका जो है उसकी जीडीपी का 98% कर्ज है उसके पास। इतने हैवी कर्ज हैं उनके पास और मुस्तमिल और बढ़ेंगे। तो उसको अगर हम पाकिस्तान की इकॉनमी को अगर हम कंपैरिजन करें है तो वो कैसे सरवाइव कर रहे हैं और दुनिया की बड़ी ताकत है। देखिए, आपने लग्जरी आइटम्स की इंपोर्ट्स की बात की, तो देखिए ये एक काफ़ी हद तक गलत फहमी है कि हमारे यहाँ लग्जरी आइटम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट होते हैं। देखिए, हमारे यहाँ लग्जरी आइटम बेशक इंपोर्ट हो रहे हैं, और अगर हम चाहते हैं कि लग्जरी आइटम बैन हो जाएं तो बैन हो जाने से जो नुकसानात हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, जो कि उनको अगर बैन ना रखा जाए तो इसका सबसे बेहतर तरीका है कि डॉलर को महंगे से महंगा करें, ताकि जो लग्जरी आइटम है वो बहुत कम लोग इंपोर्ट कर सकें। तो आप महसूलात लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं अगर आपसे कहूँ कि वो जो एक साहब ने कहा था 1000 रुपये का डॉलर कर दें, तो आपको जो है ऑडी कितनी महंगी पड़ जाएगी, फिर कितने लोग, ज़रूर कुछ ना कुछ इंपोर्ट ज़रूर होगी उसकी, ठीक है, लेकिन कम नहीं हो जाएगी बहुत अगर 1000 का रुपया हो गया, जो एक साहब ने मशवरा दिया था इस वक्त। लग्जरी आइटम्स इंपोर्ट होते हैं, उनको कंट्रोल करने का तरीका यही है कि एक्सचेंज रेट को मार्केट पे छोड़ दिया जाए। मार्केट अगर कहे कि वो 200 रुपये है तो 200 रुपये ठीक है, मार्केट कहे 800 रुपये है तो 800 रुपये ठीक है, क्योंकि मार्केट जितने डॉलर्स आ रहे हैं एक्सपोर्ट से और रेमिटेंसेस से, उनको वो एक तरह से डिस्ट्रीब्यूट करती है जो इंपोर्टर्स हैं। तो लिहाजा ये सबसे बेहतर तरीका है माशियात में, जो मार्केट को आप काम करने दें, और जहाँ पे कोई फेलियर अगर होता है तो फिर इंटरवेंशन की जाती है। अगर मार्केट ठीक से काम कर रही हो तो यहाँ तो मार्केट को काम करने ही नहीं दिया जाता, यहाँ पे तो सबसे पहले आप हुकूमत इंटरवेंशन के लिए आ जाती है ना। तो मेरा ख्याल है कि लग्जरी आइटम को बैन नहीं होना चाहिए, लेकिन उनको बहुत महंगा होना चाहिए, और महंगा इस तरह होना चाहिए कि डॉलर बहुत महंगा हो। जी जिले डिवैल्यूएशन होती है तो एक्सपोर्ट में नुकसान है? नहीं, डिवैल्यूएशन होती है तो फिर एक्सपोर्टर को फ़ायदा होता है, एक्सपोर्टर को फायदा है, सॉरी। लिहाजा जब भी डिवैल्यूएशन होती है तो रॉ मटेरियल की कीमत ज़रूर बढ़ती है, लेकिन एक्सपोर्टर का जो प्रॉफिट मार्जिन है उसमें इजाफा होता है। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं, चूँकि ऐसा लग रहा है कि हमारे फाजिल मुकर्रिर जो है इंतहाई अदब से भी दिलचस्पी रखते हैं, उनके जुमलों से अंदाज़ा है, और इल्लामा इकबाल के अशार भी उन्होंने कोट किए। तो इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए पहले तो मैं तारिक जमील को खराज इक़्क़दर पेश करना चाहता हूँ, और तमाम अहबाब को भी और मुकर्रिर को भी, कि ये इसको मैं आपको पेश करता हूँ थोड़ा। इससे पहले मेरे सवाल पे गौर कर लीजिएगा कि आप महरम राज़े दरूने में खाना रहे हैं, बड़ी मोहतात गुफ्तगू फरमा रहे हैं, तो मेरे सवाल को बियॉन्ड द लाइन भी समझिएगा, और किसी न किसी हद तक मॉनेटरी मामला से मेरा ताल्लुक है और रहा है कि हु कंट्रोल्स द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान एक्चुअली, who makes the monetary policy of Pakistan actually? Kindly read my question beyond the lines. मैं अपना कथा आपको सुनाता हूँ, ज़रा मोबाइल से निकाल के, जब तक इस सवाल के शहर से बाहर निकलिए मैं आपको ये आपने जो आज सजाई है बज़्म खास, ये आपने जो आज सजाई है बज़्म खास, इस वक्त यहाँ घर से निकलता नहीं कोई,
मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ। मैं सरकारी मुलाजिम में सोना सबसे बड़ी अयाशी है, और आप हजरात भी इतने खुश्क मौजू में, और कुछ लोग उम्र के आखिरी हिस्से में इस कदर दिलचस्पी के लेकर यहाँ तशरीफ लाए हैं। ये आपने जो आज सजाई है बज़्म खास, इस वक्त यहाँ घर से निकलता नहीं कोई, और तारिक जमील आप ये जो कर रहे हैं काम, ऐसा तो सारे शहर में करता नहीं कोई। बहुत शुक्रिया जी। मॉनेटरी पॉलिसी तो स्टेट बैंक ही बनाता है। अब मुझे नहीं मालूम कि आपने बिटवीन द लाइंस क्या पूछा है। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि IMF बनाता है मॉनेटरी पॉलिसी, तो IMF यूँ समझें कि जब IMF के साथ मुआहदा होता है तो IMF की बात माननी ज़रूरी होती है। और मैंने आपको ये कहा कि जब भी किसी मुल्क को ख़ुद इन्हिसारी या ख़ुद कफ़ीली की तरफ जाना होता है, तो वो हैरत अंगेज़ तौर पर वही पॉलिसीज़ हैं जो IMF या वर्ल्ड बैंक कह रहे होते हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि IMF या वर्ल्ड बैंक हमें मजबूर करता है कि हम अल्लामा इकबाल के कहे हुए शाहरा पे चल पड़ें। इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। रौनक हयात साहब को दे मुकालमा में बहुत अच्छा मकाला रियाजुद्दीन साहब ने पेश किया। मैं ये समझता हूँ, मैं चूँकि यहाँ मुस्तकिल आने वाला एक फर्द हूँ, और एक मेरा ताल्लुक जो है गौर व फिक्र के हल्के से है, सबसे अच्छा आज का प्रोग्राम रहा। उसकी वजह ये थी कि रियाजुद्दीन साहब ने जो आज का उन्वान था उसके साथ मुकम्मल इंसाफ किया, और बहुत अच्छा मकाला पेश किया। मैं आपका मुबारकबाद पेश करता हूँ, और आपके मकाले की मालूज़ात से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। सवाल थोड़ा सा तवील है, तो आपकी समातों का मुख्तसर करते हैं। आप तो दानिश से ताल्लुक है आपका। नहीं सर, या तो बात करूँगा या नहीं। मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि आपने अपनी गुफ्तगू में श्रीलंका के हवाले आलम भाई, आप जरा खामोशी इख्तियार करें। श्रीलंका में जब ऐसे हालात के पेश नज़र इनकलाब आया, तो उसके अवाम ने अहले इक़्तिदार का ताक़ुब किया, और अहले इक़्तिदार मुल्क छोड़कर बाहर चले। क्या आप ऐसा समझते हैं कि पाकिस्तान जो एक मुख्तलिफ लिसानी इकाइयों और मुख्तलिफ तहजीबों और मुख्तलिफ सकाफ़तों पर मुश्तमिल एक मुल्क है, क्या अगर खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे, हमारे मुंह में खाक, हम सोच भी नहीं सकते कि अगर ये मुल्क दिवालिया होता है, तो क्या हमारी आवाम जो है वो अहले इक़्तिदार का ताक़ुब करेगी? बस इतना मेरा सवाल है। बहुत शुक्रिया। देखिए, मुझे तो नहीं लगता। देखिए, बात यह है मुझे तो बज़ाहिर ऐसा नहीं लगता। देखें, इसमें शऊर का फ़र्क है। देखिए, श्रीलंका में आप जानते होंगे कि कोई 93% लिटरेसी रेट है, और वो आज से नहीं है, वो 1929 से तकरीबन 100 साल से श्रीलंका में जो है पढ़ने लिखने पे बेहद दूर है, बहुत शऊर है। और दूसरा, आपने वो हम सब ने, कुछ लोगों ने ज़रूर देखा होगा कि जब सदारती महल में श्रीलंका के अवाम एकदम से हमलावर नहीं हुए। वो देखिए, वो हमलावर नहीं हुए, उन्होंने कोई चीज़ तबाह नहीं करी। वो सब काबिज़ हो गए एक आध दिन के लिए। कोई स्विमिंग पूल में तैरने लगा, कोई बेड पे लेट गया, कोई सोफे पे बैठ गया, कोई चीज़ तबाह नहीं की। आप ये तवक्को कर सकते हैं हमारे अवाम से कि वो किसी इमारत में जाएं और ये करें काम? तो मैं नहीं समझता। ये शऊर का फ़र्क है। हमारे यहाँ ये तहजीब का फ़र्क है, ये तालीम का फ़र्क है, ये तरबियत का फ़र्क है, मेरा ख्याल है। और दूसरी बात ये है कि ताक़ुब ही नहीं करेंगे, तो मेरा ये ख्याल है। लेकिन ये अल्लाह बेहतर जानता है। आपने क्योंकि एक बिल्कुल हाइपोथेटिकल सवाल पूछा है, तो मुझे बज़ाहिर ऐसा लगता है। आप लोगों को कुछ और लगता हो तो आप अच्छा सिलसिला है, और जहाँ मैं भी आता हूँ। मेरा सवाल ये है कि यहाँ जो है डॉलर्स को आर्टिफिशियल तरीके से जो है मार्केट से गायब किया जाता है।
ٹھیک ہے. اور اس سلسلے میں حکومت یا اسٹیٹ بینک کوئی پالیسی رکھتی ہے کس طرح سے کنٹرول کر سکتی ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے عام لوگوں کی بات کی، عام لوگوں میں آپ نے نچلے طبقے کی بات کی. ایک اور طبقہ ہے درمیانہ، ٹھیک ہے. درمیانے نچلے طبقے کے لیے تو آپ نے ایک حل دے دیا کہ احساس پروگرام ہے، اس کے ذریعے ان کو فائدہ ہو جائے گا. لیکن جو درمیانہ طبقہ ہے وہ اپنی نیڈز پوری نہیں کر پا رہا ہے، اس کے لیے کوئی حل ہے آپ کے پاس؟ اعظم صاحب کو دے دو. دیکھیے درمیانے طبقے کے لیے تو ظاہر ہے کہ ایسا تو حل نہیں ہو سکتا کہ ان کو کوئی صدقات یا خیرات دینے لگے. اس کا حل صرف یہ ہے کہ معاشی استحکام کی طرف جائیں، اور جب وہ پیریڈ گزر جائے تو انفلیشن کم ہو، گروتھ بہتر ہو، روزگار کے مواقع پیدا ہوں جس سے کہ سبھی مستفید ہوں، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ متوسط طبقہ ہو. کیونکہ ہمیشہ جو مڈل انکم ہوتی ہے اس کی تعداد زیادہ ہوتی ہے رچ کے مقابلے میں بھی اور غریبوں کے مقابلے میں بھی. الحمدللہ میرا خیال ہے کہ یہ بھی اللہ میاں کی ایک نعمت ہے، ورنہ غریبوں کی تعداد ہمارے ہاں متوسط طبقے سے بہت کم ہے. تو بے شک آپ جو بات کہہ رہے ہیں، جب بھی اور مڈل انکم کو ہمیشہ نقصان بلکہ سب کو ہوتا ہے، اور وہ انفلیشن کی وجہ سے زیادہ ہوتا ہے اور بے روزگاری کی وجہ سے. تو انفلیشن کو کنٹرول کیا جائے. جی اعظم صاحب. شاید جو میرا سبجیکٹ نہیں ہے اس لیے شاید بہت زیادہ ٹیکنیکل سوال میں نہیں پوچھ سکتا، لیکن جو بنیادی بات آپ نے ایک چیز جو فرمائی ہے وہ ہے ڈالر کو آزاد چھوڑ دینا مارکیٹ فورس کے اوپر. تو پہلی بات تو یہ کہ جو میری تھوڑی بہت آبزرویشن ہے ایک کی بات کرتا ہوں کہ دنیا میں جو بڑے ممالک ہیں، ایون جاپان، بینک آف جاپان کی بات کرتے ہیں، میں سنگاپور رہا ہوں تو مجھے پتا ہے سنگاپور کا یہ لوگ کبھی مکمل آزادی نہیں چھوڑتے. انہوں نے بھی اپنے اکنامک ٹارگیٹ کے حساب سے ایک رینج سیٹ کی ہوتی ہے. دے ہیو ٹو میک شیور کہ ان کے ڈالر کی ریٹ ایک سرٹن لیول، جو بھی ان کا لیول تھا اس وقت کا، اس سے نہ اوپر جا سکے نہ نیچے جا سکے. نیچے بھی نہیں آ دیتے، اوپر بھی نہیں آ دیتے، ایک تو مینج کرتے. دوسری بات یہ کہ فری فلو ڈالر کا نتیجہ کیا ہوتا ہے. اگر آپ یاد کریں 2008 یا 2005 کا جو ایشین فائنینشیل کرائسس تھا، جس نے کہ ملیشیا، تھائی لینڈ، پورے ایشین کنٹری کی اکنامی کو بھٹا بٹا دیا تھا اس وقت. اور اس نے وہ بھی اسی لیے تھا کہ ایشین کی جو بیرون ملک کے انٹرنیشنل جو سٹے باز تھے، جارج سوروس کا نام سے بہت بڑی تک آیا تھا کہ انہوں نے کسی ایک کنٹری کی، ان کنٹریز کی کرنسی کو زمین میں گھسا دیا. تو آئی تھنک اوپن بالکل فری مارکیٹ کے ہاتھوں چھوڑنا. دیکھیے میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ ہم تو 1949 سے مینیج کرتے چلے آئے ہیں. تو اگر جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ مینیج کرنے سے بہت حالات اچھے ہوتے، تو ہم نے تو دیکھا ہی نہیں ہے وہ زمانہ کہ جب اس کو فری فلوٹ پہ رکھا جائے. ہم نے تو اس کو موقع ہی نہیں دیا. تو ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ فری فلوٹ کو موقع دیں گے تو خراب ہو جائیں گے حالات. میرے یہ بات نہیں سمجھ میں آئی بالکل. اور دوسرے ممالک ہمیشہ فری فلوٹ کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کبھی بھی اس میں دخل اندازی نہیں کریں، لیکن وہ پیریڈ زیادہ ہونا چاہیے جب فری فلوٹ ہو، اور دخل اندازی کا پیریڈ بہت کم ہونا چاہیے. ہمارے ہاں تو یہ الٹا ہے. جاپان میں اور جس کی آپ اگزامپل دے رہے ہیں وہاں یہ الٹا ہے. وہاں زیادہ تر فری فلوٹ رہتا ہے. کبھی کبھار وہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک نہیں ہے تو دخل اندازی کر دیتے ہیں، اور وہ تو کیا ہمارے ہاں بھی کرنی چاہیے، لیکن ہمارے ہاں تو صرف وہی ہوتی ہے.